Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 25. Today's worksheet is quite easy, very interesting and very important for our board examination. Today we are going to discuss about manufacturing industry जिनको हम हिंदी में विनिर्माण उद्योग बोलते हैं. Let's begin. As it is visible on a screen, this is the worksheet number 25. Our subject social science SST and geography is going on in SS. Date 1st of September 2020 and our topic manufacturing industry. Here we go. Production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. हिंदी में इसको हम विनिर्माण बोलते हैं. विनिर्माण दो शब्दों से, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वी प्लस निर्माण. इसका मतलब हुआ वी का अर्थ होता री और निर्माण का अर्थ होता प्रोड्यूस. सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज द रिप्रोडक्शन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल एंड मोर यूजेबल गुड्स. यानी कि यहाँ रिप्रोडक्शन होगा किससे? रॉ मटेरियल से. क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा यूजेबल होगा और ज़्यादा वैल्यूएबल होगा. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन एंड शुगर फ्रॉम शुगर कैन. जब शुगर बन गई शुगर कैन से तो शुगर क्या है? वो ज़्यादा कीमती भी होगी, ज़्यादा वैल्यूएबल भी होगी. आप शुगर है उसको चाय में डाल सकते हो, आप उसकी जलेबियाँ बना सकते हो, गुलाब जामुन बना सकते हो ना. बट यू कांट यूज़ द शुगर कैन हियर. शुगर कैन को यूज़ नहीं कर सकते ना. सो व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड, रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो चेंज आते हैं, प्रोडक्ट बिकम मोर वैल्यूएबल एज वेल एज मोर यूजेबल. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general economic development. In particular, mainly because अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ओके, सभी इंडस्ट्रीज किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है. एंड सेकेंडरी सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है. वाई? फर्स्ट, manufacturing industries help in the modernizing agriculture. Modernizing of the agriculture depends on machines and tools, fertilizers, pesticides, HYV seeds etc. और ये सब कहाँ से आते हैं? All these we get from the manufacturing industry से लेते हैं. So manufacturing industries is very important in the modernization of agriculture. Second, industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. Industrial development or the manufacturing industries are also very important to reduce the poverty and unemployment in our country. गरीबी कम करने में मदद मिलती है, बेरोजगारी कम होती है. कैसे कम होती है? बिकॉज thousands, lakhs of people get employed in the manufacturing industries, and if they are employed, it means it is reducing the unemployment. If there is a less unemployment in the country, it means naturally there is reduction in poverty too. Third, export of manufactured goods expands trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. That if we are having well developed manufacturing industry, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. अगर ज़्यादा तो क्या होगा? वी विल एक्सपोर्ट. हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? वी विल गेट द फॉरेन एक्सचेंज. हमें फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होगा. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. So that's all in this passage. Now let's discuss about the question answers. 4 questions are given. Here are the answers. First one is there. While manufacturing industry is dependent on agriculture. Manufacturing industry किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर. In some cases, it is also helpful in the development of agriculture. How? हमें बताना है दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. How? Both agriculture and manufacturing industries depends on each other for their development. दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है. एग्रो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स. जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो तो डायरेक्टली कच्चा माल कहाँ से लेंगे? एग्रीकल्चर से. तो किसके ऊपर डिपेंड होगी? एग्रीकल्चर के ऊपर. जबकि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कैसे? देखते हैं.
Agriculture for its modernization is dependent on manufacturing industries for agriculture machinery, chemical fertilizers, quality seeds and pesticides etc. सेम वे में एग्रीकल्चर को भी अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करना होता है, बिकॉज इट गेट एग्रीकल्चर मशीनरीज, fertilizers, chemical fertilizers, quality seeds, pesticides etc. from manufacturing industry. Second question is there, why manufacturing industries are called the backbone of economic development? Give any two reasons. 4 reasons दिए गए कि इसको आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. आर्थिक विकास के लिए जरूरी है. सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर हेल्पफुल इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू. थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर हेल्पफुल इन रिडक्सिंग और द रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. इन द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होती है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन द रिड्यूसिंग पॉवर्टी टू. सो इन दिस वे वी कैन से दैट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री we need to develop our manufacturing industries. Third one is there, name any 5 items you use in your life that are produced by manufacturing industries. हमें 5 प्रोडक्ट के नाम बताने जो हमारे घर में यूज़ होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आते हैं. फर्स्ट वन शुगर, सेकेंड वन बिस्किट, थर्ड वन नोटबुक, फोर्थ वन क्लॉथ, फिफ्थ वन फर्नीचर. एक लंबी लिस्ट हो सकती है इसकी. Fourth question is there, last one. What are the manufacturing industry in or around your city? कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके हमें एग्जांपल्स देने जो हमारे आसपास है. रेडीमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड फर्नीचर इंडस्ट्री. दीज आर द एग्जांपल. यू कैन एड इफ यू फाइंड एनीथिंग एल्स इन योर सराउंडिंग एरिया. That's all in this worksheet. I hope you are enjoying learning with us. Thank you. Bye bye. Have a nice day.